Hello students, we are studying now about the reaction of acid and bases. As we have studied that when we dissolve different types of chemical reaction, when acid react with base, acid react with metal, acid react with metallic oxide. Now we have seen that what are the common substance contained in acid and bases. The name of the main common substance which is found in acid and bases, that is hydrogen. Hydrogen positive charge. As we know that electricity always passes through the positive charge. How we can study, how we can prove that electricity pass through the positive charge. We have take some example of HCl, sulfuric acid, H2SO4, glucose, and its formula is C6H12O6. Alcohol, CH2 CH3 CH2OH. आप इसको C2H5OH. These are the examples how we can study. We can see that the electricity pass from the positive charge. Take an activities. Take a beaker and put a wooden box or a wooden log at the base. Now fix with 2 iron nails at the wooden log. Connect both the nails with just like as a figure, a bulb, a key, battery, bulb, and attached with the other iron nails. Beaker, wood log, iron nails. Now you put HCl in this beaker. First of all, you put HCl in this beaker and switch on the battery. और जैसे ही आपने इसमें HCl को पुट अप किया, इसमें आप बैटरी को स्विच ऑन कर दीजिए. जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, बल्ब विल ग्लो. बल्ब विल ग्लो, यानी इसमें बल्ब जला. Now another take activities. Put with H2SO4 sulfuric acid. You again see that bulb will glow. Now repeat this activity with C6H12O6 and switch on the battery. Bulb does not glow. Again repeat this activity with alcohol, CH3 CH2OH. You again see that bulb does not glow. It seems that both these HCl and H2SO4 contains H positive ions, because when an acid dissolves in water, it produces hydrogen or hydronium positive ions. सपोज कीजिए आपने HCl है, वाटर में डिसॉल्व करना आपने, क्या बनाएगा? या तो हाइड्रोनियम H1 और 2 3 हाइड्रोनियम, O प्लस में Cl नेगेटिव, हाइड्रोनियम पॉजिटिव चार्ज. And we can also say that light electricity pass through the positive charge. So when we repeat this activity with acid, bulb glows. It means it produces H positive ions. But in case of glucose or alcohol,
they form the OH negative ions, hydroxide negative ions. That means bulb does not glow. It can prove that light electricity pass through the positive charge, not from the negative charge. This is the activity. Now, how acids and bases? What would happen acid to base when react with water? Acid react with water. Acids react with water. कि एसिड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या होता है? When acid dissolve in water, as we already studied about the definition of acid, when any substance dissolve in water and produce H positive or hydronium positive ions, that is called acid. So that what would happen when acid dissolve in water? It produces H positive, hydrogen positive, or H3O positive, hydronium पॉजिटिव आयंस. कि किसी भी एसिड बेस को जो वाटर में डिसोल्व करते हैं, पहली बात तो एसिड को डिसोल्व करते हैं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस बनते हैं. रिएक्शन आपका यही कर लीजिए, HCl प्लस में H2SO4. आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? H3O पॉजिटिव और प्लस में Cl नेगेटिव, हाइड्रोनियम पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस. बट व्हेन एसिड डिसोल्व इन वाटर, its acidity nature becomes reduced. On dissolving, the acid in water, its acidity nature reduce. इसकी एसिडिटी नेचर रिड्यूस हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के आयंस की जो कंसंट्रेशन है दैट विल रिड्यूस. और जितनी हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी उतनी ही उसकी एसिडिटी नेचर लेस हो जाएगी. इट में ऑकर ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ the hydrogen or hydronium ions concentration. As we already studied that acids are sour in taste. यानी एसिड आपके पास प्योर है, टेस्ट में कैसे हैं? श्योर है. जैसे इसको पानी में डिसोल्व कीजिए, उसकी श्योरनेस जो है, खट्टापन जो है कम होता चला जाएगा. क्यों कम हो गया? इसी कारण से, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम की आयन की कंसंट्रेशन लेस हो जाती है. तो पहली बात तो व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम पॉजिटिव आयंस. वो हमने आयन की कंसंट्रेशन बना के दिखा दी. क्या होगा व्हेन एन एसिड डिसॉल्व इन वाटर? इट्स व्हाट वुड द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द एसिडिटी? व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट्स एसिडिटी नेचर रिड्यूस. क्यों? बिकॉज due to the decrease of hydrogen or hydronium ions. Same as when base react with the water. जब बेस को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है वो? हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयंस. नेचर कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. सेम उसी वे से अब आपका इसी प्रकार बेस का बेसिस when base dissolve in water, it produces OH नेगेटिव, बोले तो हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस. दोज आर कॉल्ड बेस. सपोज कीजिए आपके पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो Na के तो इसमें पॉजिटिव बनेंगे, बट OH के इसमें आयंस कैसे बनेंगे? नेगेटिव आयंस. तो व्हाट वुड हैपन व्हेन बेस रिएक्ट विद वाटर?
water. Base when dissolved in water, it produce hydroxide ions. Next, what is the concentration of base affect in water? बेस की वाटर के अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी. When any base dissolve in water, it reduces, और कह सकते हैं its basic nature reduces. किसके कारण से? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस. क्यों? क्योंकि OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन लेस हो जाएगी. आप ये भी कह सकते हैं ड्यू टू लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस. यहां पर फॉर्मेशन लेस अमाउंट देखे ना, तो ये कह सकते हैं ड्यू टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस. इट मींस चाहे बेस को वाटर में डिसोल्व कर लो, चाहे एसिड को वाटर में डिसोल्व कर लो, उसकी कंसंट्रेशन, एसिड को डिसोल्व किया तो हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी. बेस को डिसोल्व किया तो OH यानी हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी. इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर में डिसोल्व करने पर ये सब्सटेंस डाइल्यूट हो जाते हैं. तो क्वेश्चन उसके बाद आता है व्हाट इज डाइल्यूशन. डाइल्यूशन व्हेन acid or base dissolve in water, यानी किसी भी एसिड को और बेस को वाटर में डिसोल्व कर दीजिए. एसिड को डिसोल्व किया तो हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन, और यदि बेस को डिसोल्व किया तो हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड. देन एसिड के अंदर है, देन हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और बेस में क्या? OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन डिक्रीजेस. कि किसी भी एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व कीजिए. एसिड को डिसॉल्व किया तो इनकी कंसंट्रेशन, और बेस को डिसॉल्व किया तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन. एंड द सब्सटेंस जो डाइल्यूट हुआ है, यानी एसिड को डिसॉल्व किया वाटर में या बेस को, तो एसिड और बेस उस समय क्या कराएंगे? दोस सब्सटेंस, एंड द सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड. प्रोसेस को डाइल्यूशन, और जिस सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया, चाहे वो एसिड है और चाहे बेस है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? डाइल्यूटेड. क्लियर? उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, why it is recommended on diluting we never add water into acid but we always add acid to water. While diluting why is it recommended we always add एसिड टू वाटर, यानी हमें एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए, नॉट वाटर टू एसिड. जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, मतलब वाटर में मिलाते हैं, तो डाइल्यूशन प्रोसेस में हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, हमें हमेशा एसिड को वाटर में डिसॉल्व करना है, न कि वाटर को एसिड में. क्यों? क्योंकि एसिड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक, मींस हीट प्रोड्यूस होती है,
हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसके कारण से कई बार क्या होता है कि एसिड हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, हीट बाहर निकलती है, तो आपका जो वेसल जिसमें आप डाल रहे हैं वो फट सकता है एंड यू मे बर्न, और आप जल भी सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे इसका, व्हेन एसिड रिएक्ट विद वाटर it produce exothermic reaction। यानी आपके पास एक बर्तन में तो आपके पास वाटर है, इसमें आपके पास है H2O, और दूसरा बर्तन है आपके पास, इसमें आपके पास एसिड है। तो हमें क्या करना है, जब भी एसिड वाटर से रिएक्शन करता, चाहे एसिड को वाटर में चाहे वाटर को एसिड में मिलाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। लेकिन वाटर के, जब हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो वाटर के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि जो हीट बनती है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, और जब ये मिलाना चाहिए, और जब हम वाटर को एसिड में मिलाएंगे तो जो हीट बनेगी एसिड के अंदर वो प्रॉपर्टी है कि हीट को एब्जॉर्ब कर ले, जिसके कारण से बर्तन ब्रस्ट हो सकता है एंड यू मे बर्न। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, while we add acid to water, the water absorb the producing heat, यानी जो हीट प्रोड्यूस हुई उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट प्रोड्यूसिंग हीट। बट व्हेन वी एड वाटर टू एसिड, यानी जब हमने एसिड को वाटर में मिलाया तो वाटर के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि जो हीट बनी है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। बट जब हम वाटर को एसिड में मिलाएंगे, द हीट इज नॉट एब्जॉर्ब बाई एसिड, thus the producing heat burst the vessel, जो बर्तन है उसको तोड़ देगी एंड यू में बर्न, और आपको जला देगी। इसलिए we always add acid to water, not water to acid। Thus on diluting we add acid to water, not water to acid। इसी प्रोसेस के कारण से कि वाटर में जब एसिड मिलाते हैं तो वाटर कैपेसिटी जो हीट प्रोड्यूस को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जब एसिड को वाटर को एसिड में मिलाएंगे तो उस समय हीट इतनी एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगी कि द वेसल विल बर्स्ट, जो वेसल आपका फट जाएगा एंड यू मे बर्न। सो देयरफॉर वी ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। क्लियर?